This is exercise 3.6, question 2, second part. Question is, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. So we are given a combination. Na? See, in the first line said 2 women and 5 men together. Okay, they are finishing the work in 4 days. While in the second case, you are given 3 women and 6 men. 3 women and 6 men. Okay, together they are finishing this work in 3 days. See, here we are considering the total work as 1 because 2 parties are working together. So, one woman alone or a man alone is doing a fraction of the work. ओके तो वर्क का कोई पार्ट है जो वो कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हमारा काम आसान बनाने के लिए पूरे वर्क को 1 लेते हैं. वैसे भी जब फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आप लिखते थे द होल पिज़्ज़ा इज़ 1 एंड जब आपने इसके यहाँ आप बोलते कि हमने 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स आर डन देन दिस इज़ 1 आउट ऑफ 3 पार्ट्स किए उसका 1 पार्ट लिया तो ये फ्रैक्शन बनता था. एंड वॉट इफ़ यू आर एडिंग दिस और दिस then you will be having totally 1. करेक्ट है ना. तो यहाँ पे हम पूरे वर्क को 1 कंसीडर कर रहे हैं. Here now I am starting with my solution. Let one woman alone completes whatever is asked in the question. I am considering the same thing. One woman alone completes work in X days. What does it mean? कि पूरे X दिन मिलके जब उसने काम किया एक वुमन ने then she is doing 1 complete work. 1 work है ना. हमने बोला कंप्लीट के लिए हम 1 यूज़ करेंगे. सो सेम थिंग आई एम राइटिंग लाइक दिस. वर्क डन बाय 1 वुमन इन 1 डे इन X डेज. आई एम सॉरी X डेज क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि X डेज में वो कंप्लीट करती है. सो द वर्क डन बाय 1 वुमन इन X डेज इट इज़ 1. प्लीज चेक अगेन फॉर कंप्लीटेड वर्क हियर वी आर कंसिडरिंग 1. तो इन X डेज शी इज डूइंग 1 वर्क. देन वर्क डन by 1 woman in 1 day. See, for X days she is doing 1 work. तो 1 डे में कितना करेगी, इसका कुछ पार्ट करेगी, कितना पार्ट करेगी, विल इट बी 1 by X. सपोज हमने ये कंसिडर किया है कि एवरी डे एवरी वुमेन एवरी मैन इज कंप्लीटिंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इंडिविजुअली है ना. लाइक ये मेरे पास जो भी एम्ब्रॉयडरी वर्क का पार्ट है मैंने इमेजिन किया कि इसने 6 डेज़ में कंप्लीट किया तो एक दिन में एक पर्टिकुलर पार्ट पूरा कर लिया. उतना ही वर्क सेकेंड डे में किया. सेम वर्क इन द 3rd डे 4th डे 5th डे एंड 6th डे. तो एवरी डे सेम वर्क इज डन बाय 1 वुमेन. वैसे एक मैन हर रोज़ बराबर का काम कर रहा है. कितना काम कर रहा है एक दिन में, मैंने बोला 1 वुमेन X डेज में वर्क पूरा कर लिया, एक वर्क किया तो एक दिन में कितना करेगा 1 by X. ओके सिमिलरली इफ यू कंसीडर फॉर अ मैन लेट 1 मैन अलोन completes the work in Y days. See, reframing the sentence. Alone he is doing the work in Y days. Now I am writing it in other way that work done by 1 man in Y days.
is 1. See, same is the meaning, no? 1 for the completed work. And therefore, work done by one man in one day. एक दिन में कितना करेगा वो? 1 by y. y days में 1 वर्क कर रहा है तो 1 day में करेगा 1 by y. Okay, well, you can directly write, this is all to make you understand. You can start from here. Let one woman alone completes work in x days. Therefore, work done by one woman in 1 day is 1 by x. Similarly, if one man alone completes work in y days, then the work done by one man in 1 day is 1 by y. Now, why did we need this? Because here you are said 2 women and 5 men are working together. तो वी आर इन नीड टू मेक इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, इसलिए अभी इतना काम किया, अब हम वुमेन और मेन का वर्क निकालते हैं. सो नाउ कंसिडरिंग द फर्स्ट कंडीशन हियर, सी फॉर केस 1, अगेन राइटिंग द सेम कंडीशन. 1 woman does work in 1 day. How much work? 1 by x, जो भी हमने पिछला करके आया उससे. Therefore, in my first case I am given 2 women are working. So 2 women will do work कितने टाइम में? in 1 day. That is 2 by x. 1 ने क्या 1 by x, तो क्या होगा? तो 2 into x. But are they working for 1 day only? No. Their work is finished in 4 days. Therefore, work done by 2 women in 4 days. ये 1 डे का वर्क है, दोनों ने मिलके काम किया, तो 4 डेज का दोनों का मिलके काम कितना होगा? 4 into 2x. पहले दिन इतना किया, दूसरे दिन भी इतना किया, तीसरे भी दिन किया, 4th डे भी किया, सबको प्लस करोगे आप, तो यू विल बी गेटिंग 8 by x. दिस इज वर्क डन बाय 2 women in 4 days. Similarly, for the first case, men are also working for 4 days. पर वहाँ पे एक मैन नहीं है, वहाँ पे कितने? 5 men है. Similarly, now we will write it in short. 1 man was doing 1 by y work in a day. पिछले वाले स्टेप देखिए आप. अब यहाँ पे कितने मैन काम कर रहे हैं मिलके? 5 मैन. तो 1 मैन का 1 by y, इसलिए 5 मैन का हो गया वर्क 5 into 1 by y. कब के लिए? 1 डे के लिए. बट दे आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर अ डे, दे आर वर्किंग फॉर 4 days. तो वर्क डन आई एम राइटिंग फॉर 4 days by 5 मैन विल बी दिस. मीन्स वॉट? Okay, now writing it in step. Similarly, this was my rough work. Similarly, work done by 5 men in 4 days. चेक कर लो, ऊपर भी women के लिए भी 4 days का था, वहाँ पे 2 women were working, here 5 men are working. Okay, so 20 by y. Total work done by women and work done by men. So the total work is 8 by x plus 20 by y. Correct. And this total work कितना हुआ था? ये वर्क completes the work, और हमने बोला completed work हमारे लिए 1 है ना? So you got 1 equation. Similarly, if you go for second case, then in case 2 you are said that 3 women and 6 men. तो I will be counting work done by 3 women. कितने दिनों में? 3 women in 3 days, है ना? For second case they are finishing the work in 3 days. तो again 1 woman alone was doing 1 by x in 1 day. So 3 women will do 3 into 1 by x. Again they are working for 3 days. So 3 times of 3 into 1 by x. ये एक दिन का काम एक के लिए, ये एक दिन का वर्क 3 के लिए, और ये एक दिन का काम तीनों के लिए for 3 days. 3 दिन का काम तीनों के लिए. तो 9 by x. Also, how many men are working there?
6 men are working. Also work done by 6 men in 3 days, working for the same time. It will be again 1 man alone was doing 1 by y, अकेला था तो 1 by y वर्क कर रहा था. अब यहाँ 6 मैन कर रहे हैं तो 6 इंटू 1 by y. एक दिन में एक आदमी का काम था 1 by y. 6 मैन मिलके काम करेंगे 6 इंटू 1 by y एक दिन में, और 3 दिन में कितना करेंगे तो 3 इंटू 6 इंटू 1 by y. That is 18 by y. And what will be the total work? Total work will be 9 by x plus 18 by y, again 1. Now you can understand, no, why is 1 here? Completed work. So here there are 2 equations, we need to solve it. अब फिर से ये जो इक्वेशन है इसमें तो वेरिएबल नीचे है तो हमको उनको रिड्यूस करनी पड़ेगी पहले. सो लेट अस रिड्यूस द इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन. ये तो 1 by x 1 by y आ गया है. सो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट. सो दिस वाज द इक्वेशन. अब हम जो पहले करते आ रहे हैं क्या कंसिडर कर लेंगे. लेट 1 by x इज इक्वल टू u एंड 1 by y इज इक्वल टू v. देन द इक्वेशंस विल बी रिड्यूस. हाउ? 8 by x कैन बी रिटर्न एज 8 इंटू यू, है ना. ये 1 by x था. 20 अपॉन y था, 1 अपॉन y पूरे को भी ले लिया तो ये बन गया 20v इज इक्वल टू 1. और वैसे ही ये जो सेकंड इक्वेशन है 9 by x को लिख दिया मैंने 9 इंटू यू प्लस 18 इंटू वी 1 by y इज इक्वल टू 1. ओके, दो इक्वेशंस. अब कोई सी भी मेथड लगा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए. देन यू विल फाइंड u एंड v. आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फॉर एलिमिनेटिंग हियर 8u प्लस 20v इज देयर. तो मेरे पास किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है. इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी इक्वेशन में करने वाली हूँ मैं, और 9 का मल्टीप्लिकेशन जो दूसरी इक्वेशन में u का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे. सी 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1. होल इक्वेशन मल्टीप्लाइड विद 9 क्या मिलेगा मुझे. 72u प्लस 180v इज इक्वल टू 9, है ना. मेरा टारगेट ये है कि u के कोफिशिएंट दोनों जगह मुझे सेम मिल जाए. सेम वे ये जो सेकंड इक्वेशन है आई एम मल्टीप्लाइंग दिस होल इक्वेशन विद 8. सी व्हाट आई एम गेटिंग. 72u प्लस मल्टीप्लाइंग दिस 18 and 8 144v इज इक्वल टू 8, है ना. यू कैन सब्ट्रैक्ट. On subtracting here 180 minus 144, what are we getting? Check. 36v is equal to 9 minus 8 will give me 1. So v is equal to 1 upon 36. And if I put this value of v in any of these two equations, I will get u also. Let us put it here. 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1. 9u 18 इंटू v की जगह मैंने रख दिया 1 by 36. सो हियर एंड नाउ ट्रांसपोजिंग दिस 1 by 2 I will get this, and then you can transpose 9 also, and the answer will be 9 2s are 18. अगेन इट इज़ नॉट द फाइनल आंसर. अभी तो v और u ही मिला है, और हमारे तो वेरिएबल मेनली थे x. कितने दिनों में 1 वुमेन काम कर रही है वो x अज्यूम किया था. तो ये कहाँ से आया था. दिस वॉज योर कंसिडरेशन कि 1 by x इज़ u. तो जब u निकल गया है 1 by 18 तो हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं, है ना. यहाँ से इसको कंपेयर कर लेते हैं, है ना. Therefore here this u is 1 by x and this is 1 by 18. इसका क्या मतलब है. दोनों को अपसाइड डाउन कर लीजिए, आप रेसिप्रोकल ले लीजिए. x will be 18. ऑल्सो ये v का वैल्यू है. v और v किसके इक्वल था. v वॉज इक्वल टू 1 by y, है ना. तो 1 by y
is equal to 1 by 36. Therefore, y will be equal to 36. है ना? These were the days. So I got the final answer that one woman alone will finish the work in 18 days and one man alone will finish the work in 36 days. Okay.